قبل از گرفتاری ضمانت مسترد ہونے کے بعد فوری گرفتاری ضروری ہے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے بڑا فیصلہ جاری۔ عدالتی فیصلے کے مطابق صرف سپریم کورٹ میں درخواست دار کرنا گرفتاری کو نہیں روک سکتا۔ عبوری تحفظ خودکار نہیں، عدالت سے واضح اجازت لینا لازم ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے تحریر کردہ 4 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق ملزم زاہد خان اور دیگر کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی، تاہم ضمانت مسترد ہونے کے بعد بھی 6 ماہ تک پولیس نے گرفتاری کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد انصاف کی بنیاد ہے۔ آئی جی پنجاب نے غفلت کا اعتراف کرتے ہوئے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا سرکولر جاری کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ سپریم کورٹ کے مطابق پولیس گرفتاری میں تاخیر کا جواز انتظامی سہولت نہیں بن سکتی۔ غیر قانونی تاخیر سے نظام انصاف اور عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ اپیل زیر التوا ہو تو بھی گرفتاری سے بچاؤ ممکن نہیں جب تک کوئی حکم نہ ہو۔ درخواست گزار وکیل کی جانب سے درخواست واپس لینے پر نمٹا دی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی سفیر رینا کیونکا نے وزیراعظم ہاؤس میں الوداعی ملاقات کی۔ وزیراعظم نے رینا کیونکا کو پاکستان میں اپنی مدت ملازمت کی کامیابی سے تکمیل پر مبارکباد دی اور پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کو مضبوطی میں ان کے کردار کو سراہا۔ وزیراعظم نے 2022 کے تباہ کن سیلاب کے دوران یورپی یونین کی جانب سے فراہم کردہ امداد کو یقینی بنانے پر سفیر کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں شامل ہے اور حکومت GSP+ اسکیم کے لیے پرعزم ہے جو دونوں فریقین کے لیے باہمی مفاد کا باعث بنی۔ سفیر رینا کیونکا نے پاکستان میں اپنے قیام کے دوران ملنے والے تعاون پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ گنڈا پور خود دہشت گردوں کا سپانسرڈ ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ڈاکٹر فرحان اللہ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں علی امین سے پوچھنا چاہیے آپ لوگوں نے طالبان کو کیوں دوبارہ آباد کیا؟ دہشت گردی کو ختم کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپریشن نہ ہو۔ سینیٹر فرحان اللہ کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کو جب ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہو۔ اسپانسر ہے ساری دہشت گردی کے، ان سے تو پہلے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ نے اتنے لوگ لا کے واپس کیسے آباد کیے؟ اس کا جواب دیتے نہیں ہے یہ، اور اس کے بعد اگر کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی آگے سے اسٹریٹجی کو بھی فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس کنوینر شاہد اختر علی کی صدارت میں ہوا، جس میں 2010-11 اور 2013-14 کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔ FBR کی جانب سے 42.54 کروڑ روپے کے واجبات کی ریکوری میں ناکامی پر کمیٹی نے تشویش کا اظہار کیا۔ کنوینر نے کہا کہ 2017 میں ہدایت دی گئی تھی کہ ڈیفالٹرز کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ FBR حکام نے 1 ماہ کا وقت مانگا، جس پر کمیٹی نے ریکوری کی تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے 1 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے چالان پروسیکیوشن میں برانچ میں جمع کروا دیا، جس کی اسکروٹنی کے لیے پروسیکیوشن کی 2 رکنی ٹیم راجہ نوید کیانی اور محمد عدنان مقرر۔ چالان کی جانچ مکمل ہونے پر اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں متعلقہ جج کے سامنے ٹرائل شروع ہوگا۔ پولیس نے چالان میں ملزم عمر حیات کو قاتل قرار دیا، جس میں ثنا یوسف کی والدہ، پھوپھو اور دیگر گواہان کے بیانات بھی شامل ہیں۔ ملزم کے 164 کے اعترافی بیان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کا یہ معاملہ ہے۔ چالان پروسیکیوشن کو جمع کروا دیا گیا۔ پروسیکیوشن کی 2 رکنی ٹیم راجہ نوید کیانی اور محمد عدنان کو مقرر کیا گیا۔ چالان کی اسکروٹنی مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے سیکریٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن مسمی اور زاہد علی اخونزادہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور سود سے پاک بینکاری پر تبادلہ خیال ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت میں غیر شرعی قانون سازی قبول نہیں کریں گے اور سود سے پاک بینکاری کے لیے 1 جنوری 2028 تک آئینی پابندی ہے۔ علامہ شبیر نے سود سے پاک بینکاری پر عمل درآمد کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں MMA کی بحالی اور ملکی مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش نے انتظامیہ کا پول کھول دیا۔ ملتان کی مختلف سڑکیں گھنٹوں گزرنے کے بعد بھی ندی نالوں کا منظر پیش کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے دلزیب آکاش۔ جی دلزیب۔
कल गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने इंतज़ामिया का पोल खोल दिया। मुल्तान में कई घंटे गुजरने के बावजूद भी मुल्तान शहर की सड़कें जो हैं वो पानी का इस वक्त वहाँ पर जमा नज़र आ रहा है और नदी नालों का मंजर पेश के नज़र आ रही है और इस वक्त शहरी का ही परेशान है। शहरी हमारे हमरा मौजूद हैं, शहरी से जानेंगे। सर ये इंतज़ामिया के नाअहली है, तो ये रात से हुआ है। तो देखें मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाला रोड है ये मुल्तान में, तो अगर इसी को नहीं ये ठीक करवा सके तो फिर गली मोहल्लों का क्या करेंगे ये। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि इस वक्त जो है मुल्तान की बेशतर सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। ये सड़कों के हालात हैं, तो गलियों के हालात क्या होंगे। इंतज़ामिया का जो पोल था वो खुलकर सामने आ चुका है। मुल्तान शहर में मोती जगह पर अगर बात की जाए तो वासा की गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन पानी नहीं निकाला जा रहा, उनके ज़रिए सिर्फ खड़ी हैं और दिखाया जा रहा है कि वासा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बिल्कुल भी कोई काम होता वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। शहरों का ये मुतालबा है कि इंतज़ामिया को चाहिए वो एक्शन ले और फ़ौरन जो है ये गलियाँ और सड़कें जो हैं वो क्लियर करवाई जाएँ। जी, जिला गांचे के गांव कंदोस में हालिया शदीद बारिशों और तूफानी सैलाब के बायस 49 घरों समेत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि महकमे सेहत की तमाम बुनियादी सहूलियात बशमूल डिस्पेंसरी हेल्थ सेंटर भी बह गए। तुग़यानी के बायस हिफाजती बंद तेज बहाव में बह गए, जिससे फसलों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। दरियाए होशे की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस तलस गाँव में ज़मीनी कटाव जारी है। जिले हेडक्वार्टर्स खपलो हपी में एक घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक को तशवीशनाक हालत में स्कर्दू रेफर कर दिया गया है। ननकाना साहब में मुसलसल बारिश से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसान परेशान हैं। मरियम नवाज के हालिया दौरा ननकाना साहब में मुतासरा इलाकों में शुमार न किए जाने पर किसान मरियम नवाज से शिकवा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रियाज ताहिर खान से। जी रियाज। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से ननकाना साहब के कई देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त नाला डेक में आप देख सकते हैं कि तुग़यानी आने की वजह से सैकड़ों एकड़ अराजी जो है उस पे खड़ी फसलें, धान की फसल या चारा जो था वो मुकम्मल तौर पर या जुज़ी तौर पर जो है वो तबाह हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हमारे एरिया में तकरीबन सैकड़ों एकड़ पे खड़ी धान की फसल वो तबाह हो चुकी है। कल सीएम साहिबा डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब में आई हुई थी, हमें पता चला कि उनके विजिट के मौके पे हमारे एरिया का नाम मेंशन नहीं किया गया, इसलिए हम गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमारे जितने भी किसानों का नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ के इलाका मकीनों ने, यहाँ के किसानों ने हुकूमत पंजाब से बिलखसूस ये मुतालबा किया है कि उनका जो नुकसान हुआ है उसका किसी ना किसी हद तक जो है वो अजाला किया जाए। और उन्होंने कल सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौरा ननकाना के हवाले से इन इलाकों का जिक्र ना करने का भी शिकवा किया है। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सिरसब्ज पंजाब विजन के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने पीडीएमए हेड ऑफिस में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू नबील जावेद और डीजी पीडीएमए इरफान अली काटिया ने भी पौधे लगाए। डीजी पीडीएमए के मुताबिक सूबे के तमाम वेयर हाउसेज में शजरकारी की जा रही है, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती आलूदगी से निपटना है। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है और हर शहर को इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। हुकूमत पंजाब ने सालाना लाखों दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है ताकि आइंदा नस्लों को साफ और महफूज माहौल दिया जा सके। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख बचोली का सिलसिला जारी है। सूरज की तपिश के बायस गर्मी और हब्स ने शहरियों को बेहाल कर रखा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश का इम्कान है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा शेख रशीद से। जी शेख रशीद। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में बादल भी मौजूद हैं और सूरज की गर्मी और तपश भी मौजूद है। ठंडी हवा भी चल रही है, मगर दर्जा हरारत में कमी भी वाक़ हो रही है। आज का जो शहर का टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में इजाफ़ा होने का भी इम्कान है। इस वक्त चूँकि 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इस बात का कभी इम्कान है कि अगर यही सूरत हाल रही तो ये दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाने का इम्कान है। अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं कि आज किसी भी वक्त शहर और मुज़ाफ़ात में तेज़ मूसलाधार बारिश, आंधी और तूफ़ान के साथ, गरज चमक के साथ ये बारिश का कभी इम्कान है। ताहम ये देखना होगा कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि शहरी जो हैं वो एक बार फिर गर्मी,
हबस और तपश की लपेट में है। उसकी गर्मी की और तपश की वजह से दर्जा हरारत में बदस्तूर इजाफे का सिलसिला जारी है। जी। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि बानी पीटीआई से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए दस्तखत ज़रूरी हैं, मगर अडियाला जेल हुकाम दस्तावेज़ात वापस नहीं कर रहे। अदालत से जेल हुकाम को हिदायत देने की दरख्वास्त की गई ताकि मुकर्ररा मुद्दत में अपील दायर की जा सके। सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए दस्तखत ज़रूरी हैं। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट में सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई। सेनेट की खाली नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात के लिए 9 खवातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। तहरीक इंसाफ की 6 खवातीन आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ेंगी। मुस्लिम लीग नून से सोबिया शाहिद, पीपल्स पार्टी से राहिला बीबी, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से शाजिया बीबी उम्मीदवार हैं, जबकि सुमेरा शम्स, साइमा खालिद, मशाल आजम, मोमना बासित और मेहताब जफर आज़ाद उम्मीदवार हैं। सानिया निश्तर की सेनेट में खाली नशिस्त पर कल किसी उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों में खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट में सानिया निश्तर की खाली नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात का यह मामला है और तहरीक इंसाफ की 6 खवातीन आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ेंगी। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली में खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। समर हारून बिलोर और सईदा जमशेद मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार। समर हारून बिलोर ने कुछ दिन पहले अवामी नेशनल पार्टी छोड़कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। समर हारून बिलोर और सईदा जमशेद मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर पर गाफिल नहीं और तमाम मुमकिना कानूनी और सफारती ज़राए बरूएकार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत उनकी बहन की रिहाई और वतन वापसी के लिए हर मुमकिन कानूनी और सफारती मदद फराहम करेगी। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ की सदारत में एक खुसूसी कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया है। कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुसलसल राब्ते में रहेगी और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में दरकार मुआवनत फराहम करने के लिए मुअस्सर इक़दामात करेगी। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में दाखिलत नहीं करेगी, लेकिन मुसलसल राब्ते में रहेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। C-130 तैयारा गिलगित बल्तिस्तान में फंसे शहरियों और मकामी अफराद की इमदाद के लिए रेस्क्यू मिशन पर रवाना हुआ। तैयारा कादरी एयरबेस पहुंचा, जहां गिलगित बल्तिस्तान पुलिस और PF परवोस्ट ने तमाम मुसाफिरों की मुकम्मल स्कैनिंग की। मुसाफिरों में 82 फंसे हुए शहरी, 25 पाक फौज के एहलकार और 18 पाक फिजाइया के एहलकार शामिल थे। कुल C-130 अफराद को कादरी से NRK तक सहूलत फराहम की गई है। कल 130 अफराद को कादरी से NRK तक मुंतकिल किया गया है। C-130 तैयारा गिलगित बल्तिस्तान के लिए रेस्क्यू मिशन पर रवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली की जमानत बाद गिरफ्तारी दरखास्त की समाअत हुई। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने शिकायत कुनिंदा के तौर पर फरीक बनने की दरखास्त की, जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने एतराज किया। अदालत ने वफाक की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजार के वकील ने केस की पेचीदगी और तैयारी के लिए वक्त की जरूरत जाहिर की। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को 23 मार्च 2025 को सदर पाकिस्तान ने 17 इम्तियाज भी दिया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PARC की जमानत बाद गिरफ्तारी की समाअत हुई है। वफाकी वजारत फूड सिक्योरिटी के फरीक बनने की दरखास्त पर एतराज सामने आया है।